اور خبر تفصیل سے آرٹیسی ملازمین کی ہڑتال 13ویں دن بھی جاری رہی۔ آرٹیسی جے کے مطابق آج ریاست بھر میں دھوم دھام پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس دوران احتجاجی آرٹیسی ملازمین نے ریاست بھر کے تمام آرٹیسی ڈپوز کے باہر احتجاج کیا اور بسوں کو ڈپو سے باہر نکلنے سے روک دیا۔ اس دوران آرٹیسی ملازمین اور احتجاجیوں کے درمیان لفظی جنگ دیکھی گئی۔ پولیس عہدیداروں نے احتجاجی ملازمین کو حراست میں لے کر پولیس اسٹیشن منتقل کیا۔ ورنگل، عادل آباد، کریم نگر و دیگر مقامات پر آرٹیسی ملازمین نے دھوم دھام پروگرام میں حصہ لیا۔ وزیر اعلیٰ KCR کے خلاف نعرے بازی کی گئی اور حکومت پر آرٹیسی کے ساتھ سوتیلا سلوک کرنے کا الزام عائد کیا۔ آرٹیسی ملازمین کی ہڑتال کی تائید میں عثمانیہ یونیورسٹی کے طلباء کا احتجاج جاری ہے۔ یونیورسٹی طلباء نے آج پرگتی بھون کا گھیراؤ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ یونیورسٹی احاطے سے پرگتی بھون کی جانب روانہ ہونے والے احتجاجی طلباء کو NCC گیٹ کے قریب پولیس نے روک لیا۔ اس دوران پولیس اور طلباء کے درمیان دھکم پیل دیکھی گئی۔ کئی طلباء کو پولیس نے گرفتار کرتے ہوئے پولیس اسٹیشن منتقل کیا۔ دوسری جانب طلباء کے احتجاج کے پیش نظر پرگتی بھون پر سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ پرگتی بھون وزیر اعلیٰ KCR کی سرکاری رہائش گاہ ہے۔ مسافرین کو مشکلات میں ڈال کر احتجاج کرنے والے آرٹیسی ملازمین کے خلاف حکومت نے سخت رویہ اختیار کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہڑتال کے سبب ادارہ نقصان میں ہے، ایسے میں نئے MD کا تقرر ممکن نہیں۔ مسافرین کو بہتر سے بہتر سفر کی سہولیات فراہم کرنے کا وزیر اعلیٰ نے عہدیداروں کو مشورہ دیا۔ پیش خاص رپورٹ۔ تلنگانہ بھر میں آرٹیسی ملازمین کی ہڑتال جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ نے آرٹیسی کی ہڑتال پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ آرٹیسی کارپوریشن میں یونینوں کی بڑھتی اجارہ داری کے سبب بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے۔ آرٹیسی ملازمین کی ہڑتال کے سبب کارپوریشن کو اب تک 150 کروڑ کا نقصان ہوا ہے۔ اس نقصان کی بھرپائی کرنا بہت مشکل ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کارپوریشن کی مالی حالات کو نظر انداز کرتے ہوئے آرٹیسی ملازمین ہڑتال کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ڈیڈ لائن کو نظر انداز کرتے ہوئے ہڑتال کرنے والے ملازمین کو دوبارہ ملازمت میں لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ محکمہ آرٹیسی کے ملازمین کے ساتھ جائزہ اجلاس کے دوران وزیر اعلیٰ نے کہا کہ علیحدہ تلنگانہ کے قیام کے بعد آرٹیسی ملازمین کو 44% فٹمنٹ دیا گیا، 16% IR دیا گیا۔ اس کے علاوہ کارپوریشن کو 3300 کروڑ کی امداد بھی دی گئی۔ تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا۔ باوجود اس کے آرٹیسی ملازمین دسہرہ بتکما تہوار کے موقع پر ہی ہڑتال کرتے ہوئے مسافرین کو مشکلات کھڑی کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے پرائیویٹ بسوں کی تعداد میں اضافہ کرنے کا عہدیداروں کو مشورہ دیا۔ ساتھ ہی وزیر اعلیٰ نے تجربے کار ڈرائیورز کا انتخاب کرنے کا حکم جاری کیا۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ آرٹیسی ملازمین کی ہڑتال کا آج 13واں دن ہے۔ ہڑتالی ملازمین کی تائید میں بائیں بازو جماعتوں نے کریم نگر میں احتجاج کیا۔ اس دوران ریاستی وزیر گنگولا کملاکر کے مکان کا گھیراؤ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس دوران پولیس نے CPI CPM کارکنوں کو حراست میں لے کر پولیس اسٹیشن منتقل کیا۔ احتجاجی بائیں بازو کارکنوں نے وزیر اعلیٰ KCR کے خلاف نعرے بازی کی۔ ریاستی وزیر کملاکر نے بھی چند دن قبل احتجاجی ملازمین کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے والا بیان دیا تھا، جس پر بائیں بازو جماعتوں کے کارکنوں نے گنگولا کملاکر پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ آرٹیسی کے بعد اب الیکٹریسٹی ملازمین بھی تلنگانہ میں احتجاج کا راستہ اختیار کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ 4 دسمبر 2006 سے الیکٹریسٹی میں 24,000 ملازمین کانٹریکٹ اساس پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ریاستی حکومت نے 2016 کو انہیں مستقل ملازمت دینے کا وعدہ کیا تھا۔ 2 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی انہیں نہ تو TADA اور نہ ہی HRA دیا جا رہا ہے۔ حکومت کے طریقہ کار پر ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے محکمہ الیکٹریسٹی کی 21 یونینوں نے ہڑتال کا راستہ اختیار کرنے کا انتباہ دیا ہے۔ ملازمین کا کہنا ہے کہ اگر ان کے مسائل پر توجہ نہیں دی گئی تو وہ بھی غیر معینہ مدت کے لیے ہڑتال کر سکتے ہیں۔ تلنگانہ آرٹیسی کے ورکرز کی JSC کی بند کی حمایت میں شہر حیدرآباد کے اندرا پارک پر بائیں بازو کی جماعتوں کے لیڈروں نے زنجیری بھوک ہڑتال کی شروعات کی۔
इस भूख हड़ताल में CPIM के रियासती सेक्रेटरी तम्मिनेनी वीरभद्रम, CPI के रियासती सेक्रेटरी चाड़ा वेंकट रेड्डी समेत अहम शख्सियतों ने शिरकत की। प्रोफेसर नागेश्वर राव, सरकंदा माहिर तालीम चुक्कारामैया ने भी इस जंजीरी भूख हड़ताल की हिमायत की है। प्रोफेसर नागेश्वर राव, सरकंदा माहिर तालीम चुक्कारामैया ने भी इस जंजीरी भूख हड़ताल की हिमायत की। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव आज से हुजूर नगर हल्का असेंबली में पार्टी उम्मीदवार के हक में इंतखाबी मुहिम होनी थी, लेकिन बारिश ने TRS की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। हुजूर नगर में भारी बारिश से मुंतज़मीन ने रैली को मनसूख करने का ऐलान किया। एविएशन अथॉरिटी के हुक्काम ने वज़ीर आला के हेलीकॉप्टर को हुजूर नगर जाने की इजाजत नहीं दी। रियासती वजीर जगदीश्वर रेड्डी ने रैली मनसूख करने का ऐलान किया। काबिल मरम्मत इमारतों को मुनहदम करने तेलंगाना हुकूमत के फैसले पर हाईकोर्ट ने ताज्जुब का इजहार किया है। हाईकोर्ट ने कहा कि पुरानी इमारतों को मुनहदम करना ठीक है, 7 साल कबल तामीर करदा इमारत को मुनहदम करना ठीक नहीं है। अदालत ने एडवोकेट जनरल से सवाल किया कि सिर्फ 7 साल कबल तामीर करदा इमारत को मुनहदम करना कहां तक ठीक है, जिस पर एडवोकेट जनरल ने कहा कि मौजूदा इमारत में आग बुझाने वाले फायर इंजन को अंदर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है और तमाम शोबों को एक छत के नीचे लाने के लिए ही नई इमारत तामीर की जा रही है। अदालत ने नई इमारत का प्लान और दीगर तफसीलात पेश करने की एडवोकेट जनरल को हिदायत दी। दोनों फरीकैन के बयानात को सुनने के बाद अदालत ने मुकदमे की समाअत 21 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी। हैदराबाद में नए और पुराने शहर का फर्क बढ़ता जा रहा है। नए शहर में टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक तिजारती शोबों को मुतवज्जे करने के नाम पर हजारों करोड़ों की रकम खर्च की जा रही है, वहीं पुराना शहर हैदराबाद धीरे धीरे स्लम में तब्दील होता जा रहा है। पहले मोतियों के और अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शहर के नाम से मशहूर हैदराबाद का कदीम हिस्सा तेलंगाना हुकूमत के दो नजरी बर्ताव का शिकार होता जा रहा है। 90 के दहे में हैदराबाद में इंफॉर्मेशन और दूसरी टेक्नोलॉजी कंपनियों को राग़िब करते हुए शहर के तीनों समतों में कुशादा सड़कें और दूसरी बुनियादी सहूलतों को फराहम किया गया। वहीं शहर के जनूबी इलाके में आज भी जगह जगह कचरे के ढेर नजर आते हैं, खास तौर पर बारिश के दौरान, और इसके बाद खराब सड़कों को झेलना यहाँ के शहरियान का मामूल बन चुका है। इसकी एक मिसाल चंद्रायन गुट्टा चौरास्ता है। हैदराबाद के इस चौरास्ते पर गुज़िश्ता कई माह से यही हालत है। मकामी अवाम का कहना है कि इंतजामिया से बार बार इल्तिजा के बावजूद यहाँ की हालत यूं ही बरकरार है। रोड पर इतना बड़ा गड़ा होगा, नीचे पाइपलाइन फूट गई। हम लोग बल्दिया वालों को कई बार बोल चुके हैं और यहाँ पर ले जाके वो पाउडर डाल रहे हैं। आधा घंटा 2 घंटे रह रहा पाउडर, जरा बारिश होता है सुबह तक फिर पाउडर खत्म। गाड़ियाँ रिवर्स से ले आ रहे और दूसरे गाड़ियों को टक्कर मार दे रहे, ऑटों को लग जा रहा, लेडीज गिर जा रही पीछे गड़े में। कम से कम 8-9 महीने से चल रहा हो गड़ा। आइए यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक बस्ती शाहीन नगर पर एक नजर डालते हैं। यहाँ आबादी में बीच सड़क पर ही कचरा डाला जा रहा है। मकामी लोगों का कहना है कि बदबू और ताफुन ने इन लोगों का जीना दो भर कर दिया है। वो आ रही हम लोगों को पूरों को रास्ता चल रहे हैं, सौदों को जा रहे हैं तो हमारे को बहुत तकलीफ हो रही। बेटे के 3 बच्चे बीमार है, सब जगह वो बच्चों को लेके फिर रहे हैं। देखो यहाँ दवा खाने भी नहीं है। देखो बहुत गंदगी हो गई, सो न सक रहे हैं। रातों को मालूम है पूरी बात हमारे घर वाले बातें कर रहे हैं। मच्छर की खाई है, बहुत है कचरा यहाँ लाला के फेंक दे रहे, टराका ला रहे, बोर्ड है तो सुन रहे नहीं, कुछ नहीं। एक तो मीठे पानी के पाइप खोद दिए, नला अभी नला कहीं भी नहीं आ रही। मेन रोड पे ये हालत है। एयरपोर्ट के करीब तरीन इलाका है, बस्ती पूरी तमाम है। यहाँ पे बहुत दुश्वारी हो रही, तकलीफ हो रही। डेंगू का मरज आजकल चल रहा है, ये तो मालूम ही है। कोई पुरसाले हाल नहीं है। सैकड़ों लारियाँ यहाँ ला रही, फजर के बाद जाना मुश्किल है। कंप्लेन दे के आए फिर भी नहीं हो रहा, और डेनिज उबल के जा रही। डेनिज में भी आके खाली बद्दे मार रहे। गाड़ी मंगा के आधा पानी ला रहे, वो गाड़ी के अंदर ला के उससे 3 मोरियां साफ करके आ रहे। उसके बाद भी मोरियां साफ नहीं कर रहे। मस्जिद के सामने भी उबल रहा, उसमें भी काम नहीं कर रहे। वाकने नहीं है यहाँ पे शाही नगर में, गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, खेलने का मैदान नहीं है। बुनियादी सहूलतों के लिहाज से पुराना शहर हैदराबाद हर लिहाज से नए शहर हैदराबाद के मुकाबले में पिछड़ा हुआ है। पुराने शहर के तई हुकूमत की 2 नजरी का आलम यह है कि मंसूबे में शामिल होने के बावजूद पुराने शहर हैदराबाद में मेट्रो रेल की तामीर नहीं की गई।
पुराने शहर के आवाम का कहना है कि हमें पार्क्स भले ही ना दें, लेकिन कम से कम हमारे लिए साफ सुथरा माहौल तो फराहम करें। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए हैदराबाद से अनीसुर रहमान की रिपोर्ट। सड़कों की खस्ता हाली पर एक नौजवान ने जेएचएमसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। सैयद अजमत जाफरी ने हुकूमत पर सारे फंड्स को नए शहर की तरक्की के लिए इस्तेमाल करने और पुराने शहर को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। रोड डैमेज थी, वहाँ पर मेरी बाइक स्लिप होकर मैं गिर गया, तो उसकी वजह से मेरे एंकल बोन में फ्रैक्चर आया। तो मैं इसके खिलाफ बल्दिया में पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया बल्दिया के अगेंस्ट में। तो बल्दिया के ऊपर भी एफआईआर हुआ है 338 आईपीसी के तहत। तो बल्दिया वालों का भी यही कहना है जेएचएमसी का कि हमारे पास बजट नहीं है। तो बजट कहाँ गया? 3,500 करोड़ रुपए हमारे हैदराबाद का म्यूनसिपल का बजट है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का। जो हमारे म्यूनसिपल मिनिस्टर है उनका सिर्फ और सिर्फ फोकस आप देखिए, गच्चीबोली, श्रीलिंगमपल्ली, हाईटेक सिटी, माधोपुर, इनका सिर्फ फोकस यहीं पर है और पूरा बजट लेके आके वहीं पर पूरा वो यूटिलाइज कर रहे हैं। क्यों? क्या हैदराबाद में क्या पब्लिक सिर्फ वहीं पर रहती क्या? आप जो गच्चीबोली, माधोपुर की जो आप तस्वीर दूसरे शहर को जो बता रहे हैं आपकी हैदराबाद देखो ऐसा है, भाई जो असल हैदराबाद है आप उसकी तस्वीर बताएं, आप असल जो तस्वीर है वो बताएं आप। क्या यहाँ पुराने शहर में हैदराबाद में, क्या जलपल्ली में, महेश्वरम में, क्या मेहदीपट्टनम, कोकटपल्ली में, क्या यहाँ पर लोग नहीं रहते? आपका सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूशन और आपका सिर्फ फोकस हाईटेक सिटी, गच्चीबोली, माधोपुर में है। क्यों भाई ऐसा? आप महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए एक स्पेशल बजट रिलीज करें, वहां पे जितने मसाइल, क्योंकि वहीं पर मसाइल है सबसे ज्यादा। आप देखिए पीने का पानी नहीं है वहां पर, ड्रेनेज लाइन नहीं है वहां पर, रोड्स नहीं है वहां पर, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है वहां पर, इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है, इवन बस स्टॉप भी नहीं है वहां पर। काफी स्टूडेंट्स वहां पर सफर कर रहे हैं। संगारेड्डी जिले के कोहिर मंडल में तहसील ऑफिस के सामने एक किसान की मौत हो गई। समाजी कारकुन मकबूल अहमद और महलूक के लवाकिन ने इल्जाम लगाया कि इंतजामिया की तसाहुली के सबब ही किसान तजा नायक की मौत हुई है। लवाकिन का कहना है कि किसान ई पासबुक के लिए गुज़श्ता 1 साल से दफ्तर के चक्कर काट रहा था। महलूक के रिश्तेदारों ने दफ्तर के सामने लाश रखकर एहतजाज किया। डीएसपी और आरडीओ को यकीन दहानी के बाद एहतजाज खत्म हुआ। मकबूल अहमद ने महलूक के अहल खाना को एक्सग्रेशिया देने की मांग की। तेलंगाना के जिला निजामाबाद में सड़क हादसा पेश आया है। हादसे में 2 अफराद हलाक और मजीद 2 अफराद जख्मी हो गए। हादसा डचपल्ली में पेश आया। कामारेड्डी जिले से निजामाबाद जाने वाली कार के ड्राइवर ने सड़क से गुजरने वाले बुजुर्ग जोड़े को बचाने की कोशिश के दौरान कार का तवाजुन खो दिया और ये कार सड़क के किनारे से टकरा गई। मकामी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। वरंगल शहर के मिट्टीवाड़ा पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक नौजवान का बेदर्दी से कत्ल किया गया। रामनापेट ओएस नगर से ताल्लुक रखने वाले अलाउद्दीन नामी नौजवान का नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अलाउद्दीन की लाश को एमजीएम अस्पताल मुंतकिल किया। शुबा किया जा रहा है कि शराब के नशे में नामालूम अफराद ने अलाउद्दीन पर हमला किया। इस दौरान दीगर 2 अफराद भी जख्मी हो गए हैं। पुलिस ने मुलजमीन को पकड़ने के लिए 2 खुसूसी टीमें तश्कील दी हैं। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने मकानों की तकसीम के लिए प्रोग्राम के सिलसिले में आला अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने इस इजलास में अहदेदारों को कई मशवरे भी दिए। वज़ीर आला ने साथ ही वाईएसआर नवोदया टेलीकम्युनिकेशन स्कीम का भी आगाज किया। इस स्कीम के तहत माली बहरान का सामना करने वाले छोटे और औसत पैमाने के ताजरों की मदद की जाएगी। हुकूमत एपी ने नए एमएसएमई इंडस्ट्रीज प्रोग्राम का ऐलान किया। इस स्कीम के जरिए छोटे और औसत पैमाने के ताजरों को माली मुश्किलात से बाहर निकलने में मदद दी जाएगी। इस स्कीम से तकरीबन 80,000 यूनिट्स को फायदा पहुंचेगा। हुकूमत ने पहले ही वाईएसआर नवोदया स्कीम के तहत 10 करोड़ रुपए रकम जारी की है। लड़कियों में खुद एतमादी को फरोग देने के लिए हुकूमत आंध्र प्रदेश ने किशोरी विकास प्रोग्राम को शुरू करने का मंसूबा बनाया है। गुंटूर में रियासती वज़रा टी विनीता और एम सुचिता ने इस स्कीम का आगाज किया। किशोरी विकास स्कीम के तहत 31 जनवरी 2020 तक 6ठी जमात से लेकर इंटर व पॉलिटेक्निक में तालीम हासिल कर रही लड़कियों के लिए शऊर बेदारी प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जाएंगे। इस दौरान बचपन की शादी, लड़कियों की हिरासानी, लड़कियों में तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा से मुताल्लिक़ शऊर बेदार किया जाएगा। रियासती वज़रा ने अपने खिताब के दौरान कहा कि स्मार्टफोन के सबब आए दिन ख़वातीन की हिरासानी के केसेस में इजाफा हुआ है। इसकी रोकथाम के लिए महिला मित्रा, साइबर मित्रा, वुमेन हेल्पलाइन का बहुत जल्द आगाज होने वाला है।
आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के साहिल पर तामीर करदा गैर कानूनी इमारतों को मुनहदम करने का सिलसिला जारी है। जिला गुंटूर के तलवर मंडल में तामीर करदा बैतुल खला और कैंटीन को CRDA ने मुनहदम करवाया। रेवेन्यू और पुलिस ओहदेदारों की मौजूदगी में मुनहदम कर दिया गया है। वाज़ेह के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने कृष्णा नदी के साहिल पर तेलुगु देशम दौर हुकूमत में तामीर करदा तमाम गैर कानूनी इमारतों को मुनहदम करने का हुक्म दिया है। वज़ीर आला का कहना है कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ को बालाए ताक़ रखते हुए गैर कानूनी तौर पर ये इमारतें तामीर की गई हैं। करनूल में बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी सुनील देवधर ने करनूल में कहा कि मरकजी हुकूमत ने आंध्र प्रदेश की तरक्की के लिए बड़े पैमाने पर मदद की है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि चंद्रबाबू नायडू ने बदनवानी की और रियासत की तरक्की को रोका। उन्होंने कहा कि अगर मौजूदा वज़ीर आला YS जगन मोहन रेड्डी चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ सबूत पेश करते हैं तो मरकजी हुकूमत बाबू के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि बीजेपी तेलुगु देशम से कभी इत्तेहाद नहीं करेगी और न ही YSR से उनकी मिली भगत है। The decision of party, it is not individual Sunil Devdhar's opinion. No alliance with TDP. And Chandrababu Naidu few days back said that हमसे गलती हुआ, NDA से हम बाहर निकले। हिंदी समझते हैं ना आप लोग? ये हिंदी में एक कहावत है, 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हाज को। ये इतने चूहे खाए हैं, अब हाज यात्रा के लिए निकले हैं, पुण्य कमाने के लिए नहीं। भाई गलती हो गई, अब वापस ऐसे गलती नहीं करेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। नथिंग इज गोइंग टू हैपन। सो तेलुगु देशम पार्टी गुड पीपल आर ज्वाइनिंग बीजेपी। सेकेंड थिंग, विद जनसेना आल्सो देयर विल बी नो प्रोबेबल अलायंसेस। भारतीय जनता पार्टी विल फाइंड इट्स ओन वे इन आंध्र प्रदेश। And last but not least, there is no understanding with YSRCP. पर्दे के सामने भी कुछ नहीं है, पर्दे के पीछे भी कुछ नहीं है। कुछ गलतफहमी में मत रहना। All are professional political relations, central government and state government. We are here to support newly elected government. So if they supported some bills in parliament, it doesn't mean that there is any political understanding. I want to make it clear. करनूल पुलिस की जानिब से हफ्ते शहीदा पुलिस तकारीब बड़े पैमाने पर मुनक्किद की जा रही हैं। करनूल पुलिस की जानिब से मैराथन का एहतमाम किया गया। रुकन असम्बली करनूल हफीज खान और जिला SP फकीर अप्पा ने मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। हफीज खान ने कहा कि पुलिस की जानिब से दी जाने वाली कुर्बानियों को कोई फरामोश नहीं कर सकता। उन्होंने समाज में पुलिस के रोल की सताइश की। मैराथन కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది। దీని భాగంగా జిల్లా మొత్తం వేరియస్ ప్లేసెస్లో ఈ యొక్క మ్యారథాన్ రన్, మార్టియర్స్ రన్ అని చెప్తాం మనం, దాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। ఇలాగా ఇంకా 3 రోజులు కూడా టెక్నికల్ సెమినార్, మార్టియర్స్, ఈవినింగ్ రోజు ఒక క్యాండిల్ ర్యాలీ పెట్టుకున్నాము ఆన్ 20th. 21st అనేది మనకి కమెమరేషన్ డే ఉంటుంది కాబట్టి ఆ రోజు గౌరవనీయ జిల్లా కలెక్టర్ గారు, జడ్జి గారు అండ్ అదర్ ఆఫీసర్స్తో ఇక్కడ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పడడం జరిగింది। ఇల్లు నిర్వహిస్తేనే ఈ సమాజంలో బ్యాలెన్స్ అనేది ఉంటుంది। సో పోలీస్ వ్యవస్థ అనేది చాలా ముఖ్యమైన వ్యవస్థ। ఈ వ్యవస్థ బ్యాలెన్స్ పెడితేనే సమాజం బాగుంటుంది కాబట్టి हफ्ते शहीदान पुलिस प्रोग्राम के पेश नजर विजयवाड़ा में पुलिस जवानों ने ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद किया। कृष्णा जिले के नंदीगाम में कई पुलिस जवानों ने खून का अतिया दिया। हफ्तेवारी प्रोग्राम के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस जवानों ने रैलियां निकालनी और शहीद जवानों को खराज पेश किया। खून का अतिया देना किसी को दोबारा जिंदगी देने के बराबर है। नंदीगाम DSP रमना मूर्ति ने नौजवानों को खून का अतिया देने का मशवरा दिया। मशरकी गोदावरी जिला राजूलू के साबिक रुकन असम्बली ए कृष्णम राजू YCP में शामिल हो गए हैं। अपने हामियों के साथ ताड़ेपल्ली में जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात की और YCP में शमूलियत इख्तियार कर ली। जनसेना लीडर KN राजू भी YCP में शामिल हो गए हैं। YCP में शामिल होने वाले लीडरों ने बताया कि जगन मोहन रेड्डी हुकूमत की फलाही स्कीमात से मुतासर होकर ही वो YCP में शामिल हो गए हैं। विशाखापट्टनम में हालिया दिनों GST का सबसे बड़ा धोखा दही का मामला सामने आया। डायरेक्टर जनरल ऑफ GST
AP, تلنگانہ, تمل ناڈو کے بیشتر حصوں میں ایک ساتھ تلاشی کے دوران کئی دستاویزات بھی ضبط کیے۔ ڈائریکٹوریٹ جنرل آف GST کے عہدیداروں نے کئی کروڑ روپے کے GST دھوکہ دہی معاملے میں ایک کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر کو گرفتار کر لیا۔ کمپنی جو انفراسٹرکچر پروجیکٹس اور سرکاری کانٹریکٹس حاصل کرتی ہے، حقیقی معنوں میں خدمات انجام دیے بغیر مبینہ طور پر فرضی انوائس جاری کیے۔ پتہ چلا کہ کمپنی نے دھوکہ دہی کے ذریعے 450 کروڑ روپے مالیت کے فرضی انوائس جاری کیے۔ کرنول کی درگاہ حضرت سید شاہ آخر شاہ مولا کے 667ویں عرس تقریب کا آغاز ہوا۔ متولی و سجادہ نشین سید حسن محی الدین قادری نے مراسم سندل انجام دیے اور اس تقریب میں بڑی تعداد میں عقیدت مندوں نے شرکت کی اور اس کے موقع پر جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کیا گیا۔ اس جلسے سے مولانا سید مبشر پاشا قادری نے خطاب کیا۔ حاضرین نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی تلقین کی۔